All right. So, good evening, everyone. Today we will be discussing the part test subjective paper, जो कि मैंने that I sent you a few days back. So there are some, I don't know, 13 या 14, 13 or 14 or maybe 15 questions are there. We'll try to finish it up. We'll try to finish it up in time. No, there is no issue from my end. You just see at your end. यहाँ पे सब ठीक है. चलो. Is my video audible now? Please confirm. Question number 1. I hope you guys have solved the paper by now. The LCM of the smallest two-digit composite number and the smallest composite number is. By 2-digit का smallest composite number और 2-digit का smallest composite number और smallest composite number के बीच का LCM ये पूछ रहे हैं. तो 2-digit का smallest composite number क्या है? Smallest 2-digit composite number is, this is 10, and smallest composite number is, my dear friends, it is 4, right? तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई? 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 40 मत मार करके आ जाना, घर में घुस के पिटाई होगी. 40 मत मार करके आना. इसका आंसर जो होगा that will be 20. The correct answer of this question will be 20, not 40. हालांकि 40 दिया भी नहीं है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको इस क्वेश्चन को गलत करने के बहुत हाई चांसेस नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे. I hope the question is clear to all of you. Smallest 2-digit number, we all know that it is 10. And the smallest composite number is 4. So the LCM of 4 and 10 is 20, not 40. So the correct answer of this question will be, my dear friends, 20. अगर मान लो इस क्वेश्चन में HCF पूछता तो क्या करते? HCF पूछता तो क्या करते भाई? 4 और 10 का HCF कैलकुलेट कर देते. That I guess is 2. So the correct answer of this question, अगर HCF पूछा जाता तो 2 होता, और चूंकि LCM पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 20. Now let us move to the next question very quickly. All right. For some integer q, every odd integer is of the form. जल्दी से बताओ what will be the answer of this question? Option number A, B, C or D. For some integer q, every odd. ऑप्शन नंबर सी. भाई देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि q कोई इंटीजर है. q कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. एक बार चेक करके देख लो. लेट q इज ऑड. अगर q ऑड है या फिर q इवन भी है, इवन इफ इट इज ऑड, इवन इफ इट इज q इवन, then also my dear friend 2 multiplied by q has to be even, right? So 2q plus 1 will be odd. ये तो यार 3rd क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा भी जानता है ना कि एक इवन के बाद अगला नंबर जो आता है वो ऑड आता है. जानते हो ना ये बात? तो हम लोगों ने एक नहीं 1000 बार पढ़ी होगी कि एक इवन नंबर के बाद अगला नंबर जो आता है वो ऑड आता है, फिर अगला जो आता है वो इवन आता है, फिर अगला जो आता है वो ऑड आता है. इस तरीके से द सीरीज कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2q plus 1. Now let us move to next question. चलिए इसमें बताइए. The decimal expansion of 14857 divided by 1250 will terminate after how many decimal places? इसमें आपको ये भी डिसाइड करना है कि whether it will terminate or not. टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा पहले ये बताओ, फिर ये बताओ अगर टर्मिनेट कर रहा है तो कितने प्लेसेस के बाद करेगा. वैसे तो ये करेगा क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस तो है नहीं. तो tell me the answer. What will be the answer? 4 decimal places. 4 decimal places. 4 decimal places. देखो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई? There can be different methods. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन के if the denominator of any fraction is of the form
2 raised to the power n multiplied n are whole numbers, then the decimal expansion of that fraction has to terminate. ये बात हम जानते हैं, ये बात हम लोगों ने पढ़ा. अगर इस 1250 को देखो तो दिस इज बेसिकली 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 into 2. क्यों, कैसे, ऐसे जल्दी, इतना जल्दी कैसे लिख सकते हो? इसलिए लिख सकता हूं कि आई नो दैट 125 is 5 cube and 10 is 5 into 2. तो बेसिकली दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 into 4 multiplied by 2. तो डेफिनेटली इट हैज टू टर्मिनेट. ये बात तो पता है मुझे. अब कितने प्लेसेस के बाद करेगा, अलग अलग तरीके होते हैं सबके कैलकुलेट करने के. मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. why 8? because 1250 multiplied by 8 is equal to 10,000. भाई मुझे यही तो निकालना है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन नाउ देयर इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन हियर. अगर न्यूमरेटर में आपके पास जीरो आता, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाता. यहाँ पे अगर ये नंबर 14585 होता मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस आता. बात समझ में आ रही है? से यस और नो? यस सर. अगर इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में 14585 होता, तो ये जो डेसिमल नंबर है वो 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता, ना कि 4 प्लेसेस के बाद. बट हमें कोई दिक्कत है नहीं, हमारी गाड़ी अच्छी सुंदर बढ़िया चल रही है, चलाते रहो. यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे 7 था. 7 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट डिजिट इज कमिंग आउट टू बी 6. कोई टेंशन नहीं है. आप ये बोल सकते हो सर न्यूमरेटर में इवन नंबर है, डिनोमिनेटर में भी इवन नंबर है, कैंसिल कर दो. वापस कैंसिल करके तो वही आओगे यार. कैंसिल ही तो नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना. मुझे क्या निकालना है? द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज आई वांट टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स. कैंसिल करूंगा तो वापस अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग. वो तो फिर हम वापस उसी साइकिल में घूमते रहेंगे. तो कैंसिल वगैरह कुछ नहीं करना है. सिंस न्यूमरेटर इज अ नॉन जीरो नंबर एंड द डिनोमिनेटर हैज 4 zeros after 1, therefore the decimal expansion will terminate after 4 decimal places. तो दोस्त इसका आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं है. इसका जो आंसर है वो 4 डेसिमल प्लेसेस है. शैल आई मूव अहेड? यस आई कैन. चलो भाई, इस क्वेश्चन का बता दो. HCF of 2 numbers is 18 and their product is 12960. Then I have to tell what is the number. जल्दी से बताओ LCM क्या होगा, जल्दी से बताओ. 720. जल्दी से फटाफट भाई. 129 क्या करेंगे, 12960 को 18 से डिवाइड करेंगे. तो एक काम करते, डायरेक्ट डिवीजन तो मेरे को भाई आता नहीं है. देखो भाई सीधी सी बात है, जो है वो है, मुझे नहीं आता डायरेक्ट डिवीजन. तो कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो. 2 से डिवाइड करते हैं, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3. ये हो जाएगा 720. एक स्टेप ज्यादा लगा. आपको हो सकता है डायरेक्ट डिवीजन आता होगा, आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो, मुझे नहीं आता, तो मैंने ऐसे कर दिया. अब ये बताओ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं. एक आंसर हो सकता है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, राइट. दूसरा आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दो कि दिस विल बी 0. ये 87 3 होता है 81, तो 0.29999 करके आप ऐसा लिख दो. दैट इज नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या क्या है? जल्दी से बताओ भाई क्या होगा. ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? जल्दी से बताओ, रिपीटिंग. जल्दी से बताओ भाई. Non-terminating repeating. So those the correct answer of this question will be non-terminating and repeating. Non-terminating repeating.
अगर आपके पास देखो, मैं ये भी बोल, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। Sir, don't we need to write the decimal expansion? वही मैं बोल रहा हूँ, सी दे हैव नॉट क्लियरली मेंशन्ड वेदर वी नीड टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट, बट as I told you, as I tell you always, कि you should not leave any chance to lose your marks. तो इसके बाद कैलकुलेट करके लिख दो ना यार। 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ यार। ये भाई 0 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ तक तो 2 आएगा, ये तो मुझे पता है। ये कितना हो जाएगा, 27 4 जा 54, यहाँ पे कितना बचा, 16 बचा, 26 बचा, 26 बचा, फिर एक 0 आएगा, ये 2 9 हो जाएगा, फिर 27 9 जा कितना होता है, जल्दी बताओ, 243, 27 9 जा 243, बचा कितना, 17, बचा कितना, 17, अब 170 हो जाएगा, अब कितने से जाएगा बताओ जल्दी, 6 से जाएगा, क्या बचेगा, 170, 27 6 का कितना हुआ, 152, 152 आया, अब कितना बचा, 18, अब 18 बचा तो 8 0 आ गया, अब कितने से जाएगा भाई, अब कितने से जाएगा, गलत किया क्या कुछ, एक सेकंड, ये रुको, ये सब्ट्रैक्ट भी तो गलत किया था यार। ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, और ये हो गया 2 170, और ये 27 6 12, और हाँ 162, आई एम सॉरी, सो इट विल बी 8, अब 80 तो ये रिपीट होने लगा, तो 0.296 के ऊपर बार, दैट विल बी योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0.296 देन बार, ठीक है। Yes, you have asked a very good question कि सर इसमें लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। See, देखो, the question is confusing, but I will suggest you that you should not lose even a single turn you should not give the examiner even a single minute, single opportunity to deduct your marks। तो लिख दो ना यार, कितना टाइम जा रहा है। Next question, the sum or difference of a rational and a irrational number is, यहाँ पे पूछा गया है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का, it is always irrational, तो यहाँ पे लिख दो ना भाई कि it is always irrational लिख सकते हैं, हाँ, या फिर छोड़ो, it is irrational लिख दो, always वगैरह पूछा नहीं है, don't try to be over smart, write here irrational, otherwise your examiner may want to deduct your marks, तो write it irrational, बस खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भाई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सभी लोगों को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, the HCF, if HCF of 336, 54 is 6, then I have to calculate the LCM। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में भी आया था शायद, राइट। अब ये क्वेश्चन करना सबके लिए आसान है, एक नंबर का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कैसे ये देखो, बिकॉज अभी तक तो अपन ने जो किया था वहां पे किसी नोबडी लूजेस मार्क्स, बट मार्क्स लूज करने की टेंडेंसी इसके बाद आती है। द आइडिया बिहाइंड दिस एक्सरसाइज इज यू शुड लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर थ्योरेटिकल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे HCF ऑफ 336, 54 is equal to 6, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, according to the question numbers are 336 and 54, HCF is equal to 6. Now we know that product of numbers is equal to HCF multiplied by LCM. Therefore, LCM will be equal to product of numbers divided by HCF. अब वैल्यू पुट कर दो,
which is equal to 336 into 54 divided by 6, ये 9 हो गया, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 9 6 54 5, good, Yes, sir. 3024. So finally your answer will be 3024. अलग अलग पेन का प्रयोग ना करें, मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा अलग डिफरेंट करना चाहते तो इसको, इस आंसर को एक बॉक्स में बंद कर दे, योर एग्जामिनर फील्ड इस फॉर्म को कर दे योर एग्जामिनर. These are tricks, these are the tricks to score more. चलो next, let us resume. Okay, next question. Find the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive. Basically बच्चों हमें क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है. ठीक है, इस क्वेश्चन में I have to find the LCM of the numbers. तो LCM अपन कैसे निकालेंगे? नंबर्स को हम सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखेंगे. 1 को लिख दिया 1 into 1, 2 को लिख दिया 2 into 1, 3 को लिख दिया ऐसे, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, 5 को लिख दिया 5 raised to the power 1, इसको लिख दिया ऐसे, इसको लिख दिया ऐसे, फाइनली 8 को ऐसे, 3 को 3 into 3 और 10 को 2 into 5. अब LCM जो होता है that should contain the minimum power of all the numbers. भाई हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, इस तरीके से 10 तक के सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए. तो मुझे मिनिमम पावर, जब मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में मेरे सारे नंबर्स को लिख दिया, तो आई शुड हैव द मिनिमम पावर ऑफ ऑल माय नंबर्स. तो 1 की मिनिमम पावर क्या है भाई? 1 है. 2 की मिनिमम पावर इस पूरे के पूरे में क्या है? 2 की मिनिमम पावर इज 2 and I am talking about non-zero powers, right? तो 3 की मिनिमम पावर इज 3, 4 की मिनिमम पावर, 4 की कोई मिनिमम पावर है नहीं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली प्राइम नंबर्स. 5 की मिनिमम पावर इज 5, अगेन 7 की मिनिमम पावर इज 1, 9 की ये. So this is how the number will be written. 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7. That will give me the answer as 2520. So this will give me the answer as 2520 because the number should be, see, the number should be divisible by everything, right? वो number 3 से भी divide होना चाहिए, वो number 9 से भी divide होना चाहिए. तो अगर मैंने 3 की minimum power ले लिया, I made a mistake while explaining it. देखो, वो जो number है मेरा, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए. तो 3 की जो पावर है that is 3 raised to the power 1 and 9 की जो पावर है that is 3 raised to the power 2. So if I take the minimum power, that is if I will take the power as 3 raised to the power 1, तो जो मेरा required number होगा वो 3 से तो डिवाइड होगा but 9 से डिवाइड नहीं होगा. That is the issue. तो यहाँ पे instead of taking the minimum power, we will take the maximum power of all the prime factors. सारे प्राइम फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर है that I will take here. 1 is neither prime nor composite, तो 1 को तो ऐसे का ऐसे लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर विल बी 3. नेक्स्ट अगर मैं 3 के पावर की बात करूं तो द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज 2. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द पावर ऑफ 5, सो द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इज 1. And if I talk about the power of 7, so the power of 7 is 1. So finally my answer will be 2520. The initially somehow I got distracted. That is why I told you something else that I was not supposed to. Okay, वो जो maximum power वाला जो केस होता है वो अपन HCF में करते हैं. That was because of the distraction and that was because of the disruption in the internet connection. I extremely apologize for that. Okay, next question number 9. The question is,
after how many decimal places will the decimal expansion of 24 divided by 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2 terminate? Now remember, earlier we were having the same question in this objective form, so we directly solve this question. Now we are having the same question in subjective form, so now my approach will be different. Ab approach kya hoga? Now what you will do is 24 can be written as 3 into 2 raised to the power 3, and my so my fraction आपको इसी तरीके से लिखना है. Given fraction is equal to 3 multiplied by 2 raised to the power 3 divided by 2 raised to the power 3 multiplied by 5 square. तो आप एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2 square divided by 2 divided by एक second, I'm doing some mistake. Wait, huh? If we just directly cancel them, then it will be much easier. Again, you have to multiply it by 2, right? Again, you have to multiply You by have to 4. multiply That by is 4. this. But that I want to avoid. It is very easy to cancel here, but that I want to avoid. Okay, so this I will write as 3 multiplied by 2 multiplied by 2 square divided by 2 into 5 whole square multiplied by 2. I have just rearranged my terms because I want to cancel few terms ताकि मेरे पास denominator में 2 into 5 की even की same power आ जाए. I want that my power in the denominator of 2 and 5 should be same. So this 2 and this 2 will get cancelled. Finally, I'm having 12 upon 10 whole square, which is equal to 12 upon 100, which is nothing but 0.12. So now अब 0.12 लिख के छोड़ दोगे तो बेटा नंबर कट जाएंगे. अब आपको लिखना पड़ेगा. So the decimal expansion will terminate after 2 decimal places. This is what you have to write. So the decimal expansion will terminate after 2 decimal places. This is how you have to write the full thing in the question, and this is how you will get the marks. Remember that question जिसमें आया था, you find the value of k for which we are having a unique solution. Everybody solved it correctly, but very few got the full marks. Because you were telling k is not equal to 6. मुझे k की वैल्यू ये नहीं चाहिए कि k किसके बराबर नहीं है, मुझे ये जानना है कि k किसके बराबर है. ठीक है, चलो next question. Question number, how many questions are there? Oh, चलो next question. Question number 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलते हैं? गिवन दैट √2 इज irrational number, so you have to prove that 5 plus 3 √2 is also an irrational number. ठीक है भाई, चलो लिखे. इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान कैटेगरी का है. Why? This question is much easier than the previous question जिसमें कि हम लोग ये प्रूव करते हैं कि √2 is a irrational number. This question is much easier than that. Why this question is much easier than that? Because of the reason is यहाँ पे मुझे पहले दिया हुआ है कि √2 is an irrational number. Let us start the question. Let 5 plus 3 √2 is a rational number given by या फिर expressed as P upon Q, where P and Q are co-prime and Q not equal to 0. अब एक सवाल आता है
सर अगर ऐसा नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे। बेटा अगर मेरे जैसा टीचर हुआ और अगर ये चीजें नहीं लिखी ना, तो आई विल जस्ट गिव यू 1 mark in the full question, no matter whether you have corrected the whole, whether you have done the whole question correctly or not, because this is an essential condition of a rational number. ठीक है, चलो अब now I can express 5 plus 3 root 2 as equal to P upon Q. So I can also write 3 root 2 is equal to P upon Q minus 5. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 root 2 will be equal to P minus 5Q divided by Q. So my dear friends, root 2 will be equal to P minus 5Q divided by 3Q. अब इसके आगे आपका लिखना चालू होता है। We know that हमने क्या एज्यूम किया था, P एंड Q आर को-प्राइम्स, यानी कि P और Q क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। We know that P minus 5Q divided by 3Q is a rational number. But root 2 is an irrational number. इसके बगल में लिखो given. But we have to tell why P minus 5Q upon 3Q is rational. Okay, you want to tell why P minus 5Q minus this is a rational number? Sir, ये no, भी लिख sir, we लेते have हैं। to mention that in that. Okay, चलो ठीक है, देख लो, चलो देख लो, इसको देख लो। And there, sir, in that rational number P by Q, we forgot to write that P and Q are rational numbers. Is a rational number where P and Q are, हाँ ठीक है, where P and Q are rational numbers and P and Q are co-prime. एक सेकंड रुको, where P and Q are natural number, नहीं यार ठीक है, इतनी तो डेफिनेशन होती है, expressed as P by Q where P and Q are co-prime. अगर हम co-prime बोल रहे हैं तो definitely they are natural numbers only. Co-prime, prime number, composite number, ये concept define ही होता है natural numbers के लिए. This concept is not defined for whole numbers. This concept is not defined for integers, right? So this definition is complete. There is no problem here. Now what you have to do is, अब पहले LHS की RHS की बात करते हैं. We know that P by Q is a rational number. ठीक है, rational number. 5 is also a rational number. Therefore, difference of two rational numbers, that is P upon Q minus 5 is also a rational number. ठीक है भाई? Okay. Further, we know that square root 5 is a irrational number. Why? Because it is being given. यहाँ पे लिख दो given. Sorry, it is square root 2. हाँ ठीक है, it is square root 2. Now a rational number, अब इसके आगे लिखो since a rational number is not equal to irrational number, therefore our assumption that क्या था ये 2 plus 3 root 5 क्या था ये 5 plus 3 root 2, 5 plus 3 root 2 is a rational number
number is incorrect, is incorrect. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is incorrect. Okay, fine. Is incorrect. Therefore, 5 plus 3 root 2 is an irrational number. भैया देखो, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है, इतनी रफ हैंड राइटिंग में मत लिखना, हैंड राइटिंग में थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना. आई एम राइटिंग लाइक दिस बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन होल क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस. ठीक है, चलो. Now we will move to the next question, that is question number 11. The HCF and LCM of two numbers are 9 and 360. If one number is 45, find the other number. I'm not going to explain this question. Again, you have to do the same thing. HCF is this, LCM is this, numbers are this, product of the numbers are this, and like that. So I'm not going to do this question for you. I'm moving to the next question, question number 12. Find the greatest number of 6 digit exactly divisible by 12, 24 and 36. This question came in your test also, right? Yes, sir. So सबसे पहले अपने को, हाँ बताओ. We have done this before. Yeah, we have done this before. So what we have to do is we have to calculate the LCM of 18, 24 and 36. That comes out to be 72. ठीक है, जिनको नहीं आता है वो कैलकुलेट कर लेना. उसके बाद the greatest 6-digit number is 999999. इसको जब आप 72 से डिवाइड करोगे, नाउ डिवीजन का तरीका वही है जो अपन बचपन से जो अपन डिवीजन करते चले आ रहे हैं. दैट इज द मेथड ऑफ डिवीजन. व्हाट यू वांट, यू कैन, if you want you can write it in powers of 3 also, but that I guess will complicate your process, right? तो क्योंकि फाइनली हमें कुछ रिमाइंडर मिलने वाला है. फाइनली यू विल गेट सम रिमाइंडर. उस रिमाइंडर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना. द आंसर दैट यू विल गेट will be your final answer. Okay, I'm not solving this question. I'm moving ahead to the next question. आ जाओ भाई, इसमें आ जाओ. 144 cartons of Coke and 90 cartons of Pepsi are to be stacked in a canteen. If each stock is of same height, वो सेम का ई गायब हो गया है, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. If each stock is of same height and contains equal cartons of same drink, then what would be the greatest number of cartons of each stack should have? जल्दी से बताओ, what will be the answer of this question? जल्दी से बताओ, what will be the answer? 144 and 90. Tell me the answer. 18. See, what you will write is, अब इसको करना कैसे है? टोटल काट, भाई लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. कुछ लोगों की आदत क्या होती है, डायरेक्ट लिख देंगे HCF of 144 and 90 और उसके बाद नीचे आंसर लिख के व्हाट दे विल एक्सपेक्ट दैट एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल गिव यू मार्क्स. क्यों भाई, क्यों दूं मैं मार्क्स? आपको बताना पड़ेगा कि 144 क्या है, ये 90 क्या है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी. टोटल कार्टन्स ऑफ कोक इज इक्वल टू 144. फिर लिखो नीचे वाली लाइन में टोटल कार्टन्स of Pepsi is equal to 90. Now likho, if each stock is of same height and contains equal carton of same drink, yahan pe likho since each stock is of same height, ये लिखना पड़ेगा, and contains, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि HCF क्यों ले रहे हो, and contains equal cartons of same drink therefore required cartons will be
Therefore, required cartons will be HCF of 144,90 या 90,144 लिख दो, बात एक ही है, इसको लिख दो, या तो इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो 18. So this is how you have to solve this question. Okay, shall I move ahead? Shall I move ahead? चलो next. हाँ भैया, standard question है. You have to prove that root 2 is a rational number. I'm just reading the solution that I have read, that you are also reading, that your kids, my kids, everybody is going to read that. Okay, so I'm just reading that solution. Let us assume that root 2 is a rational number, pehli line. So it can be expressed in the form of P and Q, where P and Q are co-prime and Q is not equal to 0. Again, I am saying, my dear friends, this is highly important. अगर आपके पास हाइलाइटर पेन या कुछ ऐसा लेकर जाओगे तो इस चीज को अंडरलाइन जरूर कर देना. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल नॉट राइट दिस, यू विल लूज योर मार्क्स. आगे लिखो, रूट 2, therefore root 2 will be equal to P by Q. So now solving, root 2 will be equal to P upon Q. बहुत बढ़िया बात है. स्क्वायर कर देंगे तो 2 will be equal to P upon Q whole square. So 2Q square will be equal to PQ square. So P square upon Q is equal to Q. ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं. वेरी गुड. नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 divides P, therefore P is a multiple of Q 2. So 2 divides P and hence P is a multiple of 2. This line is very important. ये line नहीं लिखोगे तो आपका proof गलत हो जाएगा. Next, let us suppose that P is equal to 2m. So P square will be equal to 4m square. So P square, now from here P square came out to be 4m square. From here P square came out to be 2Q square. तो दोनों चीजें कैसे इक्वल हो सकती है? दोनों चीजों को इक्वल कर दो, देखो क्या होता है. Q square is equal to 2m square. Therefore, Q is a multiple of 2. Now hence we are reaching a contradiction, क्योंकि ऊपर हमने बोला था कि P is a multiple of 2. यहाँ हम बोल रहे हैं Q is a multiple of 2. यहाँ पे इस वर्ड की इंपॉर्टेंस आ रही है दोस्त दया, यहाँ पे इस वर्ड की इंपॉर्टेंस आ रही है कि P and Q are co-prime. को-प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है. यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का HCF 2 हो जाएगा. इसीलिए बेटा याद रखना, ये क्यों बोथ द नंबर्स आर को-प्राइम, ये लिखना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. आगे बढ़ो. तो भाई अब हो गया, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 2 है, बट हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, हमारे एजम्पशन के हिसाब से वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग. Therefore, my dear friends, this number जो हमने assume किया था कि this number is a co-prime, that is not true. This number is a rational number, that is not true. Hence, what will it be? अगर rational नहीं है तो क्या होगा? Irrational ही तो होगा. Therefore, this number is a irrational number. समझ में आ गई? I hope ये proof आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Now let us move to the next question. हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये. अगेन इस क्वेश्चन में क्या करना है, आई विल जस्ट आस्क यू ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. ओके, बिकॉज दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. तो जैसा जैसा हम बढ़ते जाएंगे आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना. और व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू द पीडीएफ नहीं, पीपीटी in your group, whatever you want I will send it. Okay, not a big deal. ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, we have to prove that there is no positive integer for which this number is irrational. भाई आधे लोग तो इसकी लैंग्वेज से ही परेशान हो जाएंगे कि भैया लिखना क्या चाहते हैं. ये कुछ नहीं, ये बस यही लिखना चाहते हैं कि prove that this number is irrational number. बस और कुछ नहीं लिखना है इनको, और कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि no positive integer for which this number is rational. इसका मतलब ये क्या जानना चाहती है, यही जानना चाहते हैं ना कि this number is irrational. अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे. हमने मान लिया कि भाई suppose there is a positive integer n which is a rational number where p and q are
Okay, so हमने ये मान लिया कि suppose there is a positive integer n for which is a rational number where p and q are positive integers and q is not equal to 0. यहाँ पे एक चीज और लिख दो, p and q are co-prime. ठीक है, तो हमने क्या कि यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर दीजिए कि p and q are co-prime. Co-prime यूज पढ़े या ना पढ़े लिख दो, बेकार में एग्जामिनर को परेशान नहीं करते. तो P upon Q is equal to, now this was assumed to be equal to P upon Q. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, what will happen, Q upon P will be equal to 1 upon square root n minus 1 plus square root n plus 1. Rationalize कर दो दोनों तरफ. So finally you are getting root n minus 1 minus root n plus 1 divided by minus 2 is equal to Q upon P. थोड़ा सा सॉल्व कर दो यार. सो फाइनली यू आर गेटिंग दिस 2p अपॉन q इज इक्वल टू दिस. यहां तक मिल गया, यहां तक की बात समझ में आती है. इसके बाद क्या करेंगे, देखो 2p अपॉन q की वैल्यू मुझे मिली थी, p अपॉन q की वैल्यू मुझे पता थी. ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया. मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया. p अपॉन q की वैल्यू कहां से आई थी सर, यहां से आई थी ना. तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, ऐड करने के बाद मुझे ये चीज मिल गई कि फाइनली आई एम गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन pq. इसको फाइनली अपन ने लिख दिया रूट ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq. फिर अपन ने क्या किया, एक काम और करते हैं सर, दोनों को वापस से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो जब अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग 2 रूट ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन pq और रूट ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस. इतना एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड? द नीड इज अब देखो आगे क्या होता है. ठीक है भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये जो इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये पता चलता है कि ये रूट n प्लस 1 और रूट n माइनस 1 ये दोनों क्या है, ये रेशनल नंबर हैं जो कि अपन मान के चल रहे थे. देयरफॉर सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है ये भी हमारी इंटीजर्स होगी. यानी कि ये जो रूट n प्लस 1 एंड रूट n माइनस 1 है, इन दोनों का हमें परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा भाई. इन दोनों को मुझे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो हियर आई एम गेटिंग एन इंटीजर p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq एंड p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq. दिस आर द इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं ये, और ये किसके इक्वल था, रूट n प्लस 1 के इक्वल था. दैट मीन्स दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. n प्लस 1 हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड n माइनस 1 आल्सो हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं मैं, तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 comes out to be 2. This is not possible. Sir, Why this is not possible? हाँ बोलिए. sir, there is a better way to solve. एक मिनट रुक जाओ. हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज दो नंबर्स, दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस मिनिमम 3 तो होता ही है. कैसे, देख लो भाई, कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स ले लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकाल लो, यू विल फाइंड दैट इट इज मिनिमम 3. सो आवर assumption is wrong and finally this whole thing is wrong. Aruna, I'll just discuss the last question, then I will talk to you. Okay, just give me 2 minutes. So this is how this question is to be done. Now after discussing the last question, I'll ask Aruna to explain his method. Okay, chalo. Now this is a very standard question that used to be asked. अब इस question में देखो भाई, इस question के बहुत सारे answers possible हैं. इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं. सबसे पहले ये समझ लेते हैं, वन स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, बट देयर आर मेनी अदर आंसर्स पॉसिबल ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको करना क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237
ओके कर लेंगे कैलकुलेट एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 and 237. That is HCF of 81 and 237 is equal to 81 into x plus 237 into y for some x and y. ये जो for some x and y बोल रहा है ना बेटा, this makes my question very interesting. एक मेथड आपको मैं बताता हूं कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं, फिर I will explain you this method that I have. But first of all, let us try to understand how we can solve this. देखो भाई 81 is equal to 3 raised to the power 4. 237 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो what I am getting, जरा बताओ जल्दी से. 237 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 79. 79. 3 into 79. So finally I found that the HCF of the two numbers is equal to 3. HCF जो है इन दोनों नंबर्स का ये 3 है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? I have to express this HCF as equal to 81x plus 237y. तो I want to express 3 as equal to 81x plus 237y. भैया ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गई ना. देखो ध्यान से, छोड़ दो अभी, भूल जाओ कि अपन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं, किस टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं. देखो ध्यान से, इज इट ए लीनियर इक्वेशन? So this will be satisfied for infinite values of x and y, right? एक लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है, it has infinite values, क्योंकि इसका जो ग्राफ आएगा कुछ कैसे भी मान लो इस तरीके का आएगा. So for all the values of x and y, for different values of x and y, this is also a solution, this is also a solution, this is also a solution, this is also a solution. So the solution of this question will vary. मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन को, जब मैं 10th में था या जब मैंने ट्रेनिंग की थी, मैंने क्या किया था, HCF निकाल लिया. HCF I got as 3 is equal to क्या था, 81x plus 237y. Now what I did, I put x equal to -1. जीरो मत रखो, जीरो रखने से मे बी लोग नाराज हो जाते हैं. जीरो मत रखो, put x equal to -1. So finally I will get 3 minus 81, नहीं 3 plus 81 will be equal to 237y. y की वैल्यू आ गई मेरे को, y की वैल्यू आ गई 84 upon 237. पुट कर दो भाई, x और y के टर्म्स में तो लिखना था, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि x and y should be integer or x and y should be natural number. Nowhere it was written. So you can do it like this also. Okay, but now coming to the method, that is also not wrong. इसमें यह भी बात सही है कि अरुणव जो करेगा उसका आंसर दूसरा हो सकता है, धैर्य जो करेगा उसका आंसर दूसरा हो सकता है, ईशा या संजिता जो करेंगी उसका आंसर दूसरा हो सकता है. Nobody is wrong and all are correct. ठीक है, चलो now let us see how to solve this question. भाई आप, हाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना. On applying Euclid's division algorithm, बहुत जरूरी है ये लाइन लिखना. 237 is equal to 81 into 2 plus 75. भाई 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 237 से ज्यादा हो जाएगा. पॉजिटिव ही रखना है तो 81 into 2 plus 2 this 75. Now this 81 is equal to 75 into 1 plus 6. Now this 75 is equal to 6 into 12 plus 3. So 6 is equal to 3 into 2 plus 0. So finally I'm having the HCF of the number is 3. HCF of the number is 3 आ गया. अब 3 को मुझे इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. तो जैसे अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते आए थे, अभी यहाँ से भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो. कैसे सर? 3 is equal to 75 minus 6 into 12. This is equal to 75 minus 81 minus 75 into 1 multiplied by 12. ठीक है, उसके बाद आगे इसी तरीके से when you will proceed in backward direction, so finally you will get this is equal to 13 into 237 minus 81 into 38.
13 into 237 minus 81 into 238. So x की वैल्यू आ गई 2 minus 38, y की वैल्यू आ गई 13. आपकी वैल्यू कुछ और भी आ सकती है. आपकी वैल्यू 12 कॉमा समथिंग भी आ सकती है, 13 कॉमा समथिंग भी आ सकती है. Not a big deal. If you want, you can verify. I'm not saying that. See, there will be different answers of this question, right? Remember that. There will be different answers of this question. So if you are having a different answers, then don't worry about it. Now I will